Hello, dear friends. This is your course instructor Asif Javed. I hope that all of you are doing fine. Uh, Moreover, I want to tell you that I had promised you guys that I will come up with the topics that I have unintentionally missed. So this is going to be the lecture where we will take up some topics which we have unintentionally missed while we were having class. So today we will be discussing about tangent plane at point P. But before that, let me tell you what we are going to do first of all. So the first thing we are going to do is, here we go. So the result is find the equations what we have to do is that find the equations of the tangent plane and normal to surface and normal to a surface at a given point. So this is our first task. How we will do this? First of all, we know that equation of a level surface is given by f of x comma y comma z equal to c. Let r equal to x comma I plus y comma j plus z comma x times I cap plus y times j cap plus z comma z times k cap be the position vector of any point. Be the position vector of any point of on the surface Next, if we take that point, then this del f, which is equal to del f by del x times I plus del f by del y times j plus del f by del z times k is a vector along the normal to surface, is a vector along the normal to the surface at P. Therefore, this del f is perpendicular
to tangent plane at P। अगर ये आपके पास सपोज सरफेस है, तो सरफेस को अगर कोई हमें पता है कि जो डेल एफ वेक्टर होता है, दिस इज ए नॉर्मल टू द सरफेस। अब जो आपका टेंजेंट प्लेन है वो अलोंग द सरफेस लाई करेगा, तो अगर ये सरफेस के नॉर्मल है तो ये टेंजेंट प्लेन के भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट R which is equal to capital X times I, capital Y times J plus capital Z times K be the position vector of any point, be the position vector of any current point Q, X, Y, Z on the tangent plane to the surface, on the tangent plane to the surface. Then one thing is clear that PQ, P was what? P was a point on the surface and Q is the point on the tangent plane. Since they are lying in the same plane, so if we find out the PQ, that is the vector joining P and Q, and this is nothing but this is difference of position vectors of the point on the tangent plane and point on the level surface. So this will come out to be x minus xi cap, y minus yj cap, z minus zk cap. So this is a line segment. I would say this is a vector joining point P and Q, but we know that they are lying on the since this vector is going to lie on the plane of level surface and tangent plane, and we know that level surface and tangent plane, they are perpendicular to the vector. They are perpendicular to the vector del f, which is perpendicular to the level surface. So we can say what? So we can say this. हम ये कह सकते हैं कि जो PQ आपका वेक्टर है, PQ, this PQ, this is perpendicular to del f वेक्टर। देखो ना, यहाँ पे देखिए, ये आपकी लेवल सरफेस है, यहीं पे टेंजेंट प्लेन भी लाई करता है। एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया है P और Q पॉइंट यहाँ पे लिया है। अब इस PQ को जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली ये P आपका पोजीशन वेक्टर R है, सॉरी थोड़ा सा इसको देखिए, Q आपका पोजीशन वेक्टर कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा R माइनस दिस। और हमें पता है कि ये जो डेल एफ है, दिस इज नॉर्मल टू दिस लेवल सरफेस, तो टेंजेंट प्लेन के भी नॉर्मल हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर। तो यही मैंने लिखा है, जो पी क्यू है ये वेक्टर भी किसके नॉर्मल हो जाएगा, डेल एफ के। अगर ये नॉर्मल होगा इसके, तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड डेल एफ दिस शुड बी इक्वल टू स्केलर 0। अब ये किसके इक्वल है, एक्स माइनस एक्स आई प्लस वाई माइनस वाई जे प्लस z माइनस जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल एफ बाई डेल एक्स टाइम्स आई, डेल एफ बाई डेल वाई टाइम्स जे, डेल एफ बाई डेल जेड टाइम्स के,
दिस इज इक्वल टू 0। अब इनको कीजिए ज़रा आप, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस वाई del f by del y. Let me erase this, plus z minus z del f by del z. This is equal to 0. So this will be the equation of the tangent plane, which is the equation of the tangent plane. किस point पे? At point P, at any point of the level surface, provided you have been given the point on the tangent plane, which is capital X, capital Y, capital Z. So if that is given to you and P is any point on the level surface, so you can easily find what I am saying, this equation of tangent plane, which comes out to be x minus x, y minus y, z minus z, taking their products with these partial derivatives and then taking their sum equal to 0. So this is going to be the equation of tangent to tangent plane. Now we have to find next the equation of normal to surface. Equation of normal to surface. So we have seen both the vector form as well as scalar form. Fine. Now coming to the normal to, next we have to find equation of normal at point P. इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए, लेट हम एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं R, बी पोजीशन वेक्टर of any current point of any current point on the normal at P, on the normal, ये normal के ऊपर point है, ठीक है, normal at P to the surface, ठीक है, ये आपका normal है to the surface, इसके ऊपर मैं एक point ले रहा हूँ P, obviously ये point किस तरह का होगा, x y z, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना लिया हमने, ये लिया है हमने कैपिटल R वेक्टर, ओके, सॉरी दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q, इसका नाम मैं Q रखता हूँ, इसका नाम रखिए पॉइंट Q। और ये नॉर्मल किस पॉइंट पे हमने लिया हुआ है, ये नॉर्मल लिया है हमने पॉइंट P पे, ये नॉर्मल पॉइंट P पे है, तो पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट P जो है ये सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, और Q पॉइंट अभी हमने नॉर्मल पे लिया है, पहले हमने कहाँ पे लिया था, टेंजेंट प्लेन पे, सॉरी दिस इज एक्स वाई जेड, तो Q पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, P पॉइंट यहाँ पे लिया, और P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल r, और वो स्मॉल r किसके इक्वल है, दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स स्मॉल एक्स वाई और जेड होंगे। अब अगर मैं फिर से पी क्यू फाइंड करूं,
तो पी क्यू जब भी फाइंड करते हैं तो अगला वाला जो पॉइंट है उसका पहला कोऑर्डिनेट माइनस इसका पहला कोऑर्डिनेट टाइम्स आई, सिमिलरली y माइनस वाई टाइम्स j, z माइनस जेड टाइम्स k। अब अगर गौर से आप देखें पी क्यू जो है किसके परपेंडिकुलर है, इफ यू लुक एट पी क्यू, अभी आप पी क्यू को देखिए जरा, पी क्यू जो है ये किसके, पहले हमने देखा था ये पी क्यू वेक्टर जो है परपेंडिकुलर था नॉर्मल के, लेकिन अभी ये पी क्यू जो है ये पैरेलल टू नॉर्मल है। सो यू कैन सी इट क्लियरली, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है, बट जो नॉर्मल होता है बेसिकली ये वेक्टर होता है जो नॉर्मल टू सरफेस होता है। इसका मतलब ये वेक्टर नॉर्मल हो जाएगा, ये सॉरी पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, क्योंकि पी क्यू भी परपेंडिकुलर है सरफेस के और डेल एफ भी क्या है, नॉर्मल है सरफेस के। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे कंडीशन ये बनेगी कि जो आपका पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू दिस इज पैरेलल टू डेल एफ। अब ये पैरेलल है, इसका मतलब देयरफॉर पी क्यू वेक्टर क्रॉस डेल एफ, जब भी दो वेक्टर्स क्या होते हैं पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो ये हो जाएगी आपकी वेक्टर इक्वेशन, विच इज ए वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी, इफ यू लुक एट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस नॉर्मल फॉर्म की, तो कार्टेशियन फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए सिंपली आपको देखना है कि पी क्यू किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू डेल एफ। और जब भी एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होता है तो एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। सो पी क्यू इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ डेल एफ फॉर सम स्केलर lambda। सो देयरफॉर पी क्यू क्या है आपका, x माइनस एक्स टाइम्स आई प्लस वाई माइनस वाई टाइम्स जे प्लस z माइनस जेड टाइम्स k, दिस इज इक्वल टू lambda टाइम्स del f by del x times I del f by del y times j प्लस del f by del z times k। अब आप सिंपली इनको इक्वेट कीजिए, when you will equate them what you are going to get, x minus x किसके इक्वल होगा, दिस इज lambda टाइम्स del f by del x, y माइनस y किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज lambda टाइम्स del f by del y, और z माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, lambda टाइम्स del f by del z। इनको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सी केयरफुली, दिस इज, इसको देखिए पहले वाले को, x माइनस एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स, ये किसके इक्वल है, लेमडा के, फिर y माइनस वाई अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, ये भी किसके इक्वल है, लेमडा के, फिर z माइनस जेड अपॉन डेल एफ बाई डेल जेड, ये भी किसके इक्वल है, लेमडा के। दैट मीन्स ये तीन के तीन इक्वल होंगे आपस में। सो व्हाट डू वी गेट, सो वी कैन राइट x minus x upon del f by del x, this is equal to y minus y upon del f by del y, which is equal to z minus z upon del f by del z। तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी, दिस इज नॉर्मल फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपकी हो गई नॉर्मल फॉर्म। होप दिस इज ओके। तो इसकी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी बता दी, दैट इज पी क्यू क्रॉस del f equal to 0 vector, where p is the point on the surface at which we are having the normal,
और आपका Q जो है दिस इज द पॉइंट ऑन द नॉर्मल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। हम प्रूव करेंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास जो दो सरफेसेस होती हैं, सपोज मेरे पास दो सरफेसेस हैं, एक मेरे पास S1 है और एक S2 है। तो इनके बीच का एंगल बेसिकली क्या होता है, आप एक टेंजेंट आप क्या कीजिए, इनके बीच में आप इनके जो है नॉर्मल ड्रा कीजिए। इसका नॉर्मल ड्रा कीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और दिस इज सरफेस सपोज S1 एंड दिस इज सरफेस S2। तो S2 पे आपने नॉर्मल ड्रा किया, S1 पे नॉर्मल ड्रा किया, अब S2 पे भी आप नॉर्मल ड्रा करें। तो नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वही आपकी सरफेसेस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास दो सरफेसेस हैं, यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे आप इस सरफेस का भी नॉर्मल ड्रा करें और दूसरे सरफेस का नॉर्मल भी ड्रा करें, इनके बीच में जो एंगल होगा वही इन दो सरफेसेस के बीच का एंगल होगा। क्लियर है? तो ये होता है एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली होता, दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दिस इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू del phi 1 dot del phi 2 upon magnitude of del phi 1 into magnitude of del phi 2। अगर हमारे पास दो सरफेसेस हैं, इसका प्रूफ आप पेज नंबर 90 है बुक का, स्पेक्ट्रम का, वहां से आप इसका प्रूफ प्रॉपर्ली देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ गाइड करता हूँ किस तरह से इसको हैंडल करना है। देखिए phi 1 आपके पास एक phi 1 और phi 2 दो सरफेसेस हैं, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करते हैं किस एंगल पे, एंगल थीटा पे। मतलब इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा। लेकिन आपको पता है इसका जो नॉर्मल है वो क्या होता है, del phi 1, और इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, del phi 2। और नॉर्मल्स के बीच का एंगल जो है वही सरफेसेस के बीच का एंगल होता है। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, del phi 1 डॉट del phi 2, ये नॉर्मल्स, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ del phi 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ del phi 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। तो यहीं से निकलेगा आपके पास एंगल विच इज इक्वल टू दिस del phi 1 dot del phi 2 upon magnitude of del phi 1 into magnitude of del phi 2। So this is again very simple। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो अनइंटेंशनली छूट गए थे, एंड देयर आर चांसेस कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये आपके सिलेबस में एज सच तो टेंजेंट प्लान शायद नहीं मेंशन है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। बट आई गेस ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल्स जो हमने किए हैं वो भी, और जो नहीं किए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइजेज वगैरह। सो देयर आर चांसेस कि हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं देखूंगा अगर और भी कुछ टॉपिक्स मुझे लगे जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।